Welcome dear students. This lecture, how wealth accumulates and men decay, is third in our series of how wealth accumulates and men decay. If you haven't watched our previous two videos, you are advised to watch those after watching this to connect the dots, right? So let's begin with what actually this particular essay contains, right? So this particular essay, as I have already told in the previous lectures, that this essay is about it's a comment on the capitalism, right? So capitalism क्या होता है? Capitalism is a kind of system where means of production are owned by private individuals. ऐसा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ऐसे बनाने चीज़ें की प्रोड्यूस करने के ज़रिए जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होते हैं, फ्यू इंडिविजुअल्स के पास होते हैं, ना कि उस बंदे के पास खुद होते हैं, ना कि उसको स्टेट ओन करती है, ना ही उसको कोई इंडिविजुअली, ना ही उसको पब्लिकली कोई सोशली ओन कर रहा है. वो एक प्राइवेट फ्यू इंडिविजुअल्स के बारे में, लाइक प्राइवेट कंपनीज हमारी बहुत. तो उसका अपोजिट होता है सोशलिस्ट सिस्टम, जिसमें पब्लिक को और काफ़ी लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, राइट. बट जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जिसको हम कैपिटलिस्ट सिस्टम कहते हैं, वो है एक प्राइवेट ओनरशिप पर फ्यू इंडिविजुअल्स की मालकियत, राइट. सो इन दिस पर्टिकुलर essay, G.B. Shah actually exemplifies he has been a staunch enemy of a staunch enemy of capitalist system. So in order to prove his point that capitalist system is wrong, because he believes that capitalist system actually encourages ignorance among the masses, right. So he draws comparison between the previous societies and the societies that that got created after the birth of the capitalism. He says that capitalism exploits people, it spreads ignorance, and in order to understand fully how G.B. Shah, George Bernard Shaw exemplifies his viewpoint, let us discuss right now. So in the very first, in this particular essay, Shah, what does he do? He actually talks about the capitalism. Then he begins his essay by giving a very common example of pin making, right? Pin making, छोटे-छोटे pin बनाना. He actually gives us the example, and he draws comparison between the previous societies who used to make pins and the society that came after the birth of the capitalist system, right? He says that before the birth of the capitalist system, a pin maker used to do every sort of job, from collecting the raw material, from heating it, from melting it, from giving it shape, and eventually making it for use, final product. So he says that at that particular point of time, a person had the knowledge of everything, right, from collecting raw material, right, for the pin making, then polishing it, melting it, polishing, and getting it ready for the use. So after the capitalist system came into being, Shah actually says that कि ये जो पिन मेकिंग की जो क्वालिटी थी एक पिन बनाने वाले की, वो पहले तो पिन बनाया करता था, उसके पास रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, कैसे कलेक्ट किया जाता है, कैसे उसको बर्न करना है, पिघलाना है, कैसे उसको पॉलिश करना है, कैसे उसको फाइनली मार्केट में ले जाने के लिए काबिल बनाना है उसको. तो उसको बहुत सी मल्टी डायमेंशनल नॉलेज थी. लेकिन अब जब से मशीन का सिस्टम आ गया, जब से कैपिटलिज्म आ गया, अब क्या है कि मशीन सारा काम कर रही है, तो इंसान का काम है ही नहीं है. किसी का काम पैकिंग करना है, किसी का काम रॉ मटेरियल इकट्ठा करना है. तो पिन बनाने वालों में भी सब में एक डिवीजन हो गई है, वर्क जो डिवाइड हो चुका है, और हर एक जो पिन में इन्वॉल्व है, किसी को भी पूरे पिन बनाने की पूरी नॉलेज नहीं है कि कैसे पिन बनाना है. किसी को सिर्फ कलेक्टिंग रॉ मटेरियल की है, किसी को मेल्टिंग पॉलिशिंग की है, किसी को कैसे प्रोडक्ट बेचना है, कैसे सेल करना है, कैसे पैक करना है. तो ये बात, राइट. तो इससे उसने कहा कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस था, पहले एक आदमी के पास इतनी ज़्यादा नॉलेज होती थी, अब वो नॉलेज जो है डिवाइड हो चुकी है. दैट्स वाई G.B. Shah hates the capitalist system, right. So we will discuss about the advantages too. Of course there are advantages of a capitalist system too, we will discuss, but first we have to discuss about the G.B. Shah's viewpoint, because this essay has been written by the G.B. Shah. So we need to understand ourselves, we need to understand what does he think about the capitalism. So then we will draw our own conclusion in the final. And then in order to emphasize his point, he gives us another example. That's not about the pin making. He gives another example about the woolen cloths, right.
He says that in the past time a person used to collect wool, shear wool from the body of the sheep, and then he would collect it, then he would wash it, then he would do this and that in order to prepare a woolen cloth. And a single person had the tremendous amount of knowledge, multiple knowledge of multiple things in order to prepare a woolen cloth, right? But he says that after the birth of capitalism, everything has changed, everything is gone under a dramatic change. Now a person who wears a cloth, he does not know how his or her cloth was being made, right? He is completely oblivious of how his clothes were, how the raw materials were collected, how it underwent different sort of stages, and then eventually it came into the market. तो ये जिबिशा का यही कहना है कि पहले लोगों को पता होता था कि वूलन क्लॉथ किस तरह से बनता है, कैसे खुद वो शीप से रियर करते थे उसके बालों को, उसके बाद उसको कैसे धोया जाता था, कैसे उसको प्रिपेयर किया जाता, कैसे उसको धागे की फार्म में लाया जाता था, और फिर कैसे उसके लिए बाद इवेंचुअली एक प्रोडक्ट तैयार होता था. लेकिन अब वो कह रहे हैं जिबिशा कि अब लोगों के तन पर जो कपड़े लगे हैं, हाल ये हो चुका है, लोगों को उसका भी नहीं पता कि आखिर बनाए कैसे जाते हैं, राइट? वो जस्ट जाते हैं और मार्केट में से ख़रीद लेते हैं, राइट? सो अगेन दैट्स वाई ही हेट्स, right? These two examples he gives, pin making and woolen cloth in order to exemplify his point, how it spread ignorance, right? Capitalist system spreads ignorance. So he says that the work of a man has been overtaken by the machines, right? So he was very upset that human knowledge was degrading. So ऐसा क्यों लग रहा था? क्योंकि उस समय मशीनरी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये वो चीज़ें बहुत सी हो रही थी दुनिया में. तो दुनिया एक पुराने सिस्टम से अभी पूरी तरह से ओल्ड भी नहीं रही थी और पूरी तरह से न्यू भी नहीं आई थी. एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही थी दुनिया में, तो लोग काफ़ी अप्रीहेंसिव थे. उसी तरह से वन ऑफ देम वाज जिबिशा, राइट? क्या होगा, ह्यूमन इंटेलिजेंस खत्म हो जाएगा. सो जिस तरह से आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है ना, तो हम डर रहे हैं कि नहीं, पता नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, अब क्या होगा, ह्यूमैनिटी को खतरे में. तो अब देख लें, तब उस ज़माने की जो बात है, समझ लें उनके लिए ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी जो आज हमारे लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, राइट? सो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा. तो फियर्स थे उस समय पर, और उसी टाइम पर बहुत से लोग कैपिटलिज्म को सपोर्ट भी करते थे. जो सपोर्ट करते थे उनका कहना कुछ और था. और पूरी जो आपका ऐसे है ना, ये इनमें दो मेन एग्जांपल के ऊपर घूम रहा है कि जिबिशा जो है इन दोनों एग्जांपल्स को देकर और भी बहुत सी चीज़ें बीच में बताते हैं, बट प्राइमरीली यही है कि ये जो दो एग्जांपल्स हैं उससे ये देते हैं कि, और बताते हैं कि किस तरह से जो है ह्यूमन वर्क जो है डिवाइड हो चुका है. अब इंडिविजुअल्स में लोगों को पता ही नहीं है ये कहाँ से कपड़ा आ रहा है, क्या आ रहा है, जस्ट जा रहे हैं और ख़रीद रहे हैं, और जो उनके पास है उनको उस चीज़ की भी नॉलेज नहीं है, राइट? सो ही इज़ वेरी अपसेट कि वन शुड बी हैविंग नॉलेज ऑफ मेकिंग अ क्लॉथ, वन शुड बी हैविंग अ नॉलेज ऑफ व्हाट ही इज़ डूइंग, राइट? सो बट ही सेज दैट अ पर्सन द वर्क हैज़ नाउ बीन डिवाइडेड, राइट? सो ह्यूमन इंटेलिजेंस हैज़ बीन रिड्यूस्ड, कि मशीनों ने ओवरटेक कर लिया है और ह्यूमन जो इंटेलिजेंस है वो कम होता जा रहा है. एक बंदे की पहले जितनी क्षमता थी उतनी अब नहीं रही, राइट? तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि उस ज़माने का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन लोगों को लग रहा था, उसको लग रहा था कि शायद कुछ खराबी आने वाली दुनिया में. लेकिन उससे आगे चलें तो उससे आगे वो जो कैपिटलिज्म के सपोर्ट में भी बहुत से लोग थे, और जो कैपिटलिज्म के सपोर्ट में थे उनका ये मानना था कि कैपिटलिज्म से चीज़ें सस्ती हुई हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है, राइट? अभी अगर मुझे कुछ चीज़ ऑर्डर करनी है तो मैं जस्ट ऑर्डर दूंगा तो विद इन फ्यू आवर्स वो मेरे पास प्रिपेयर होगी. कपड़ों का ऑर्डर देना है, कुछ टाइम देंगे तो उसके बाद मशीनें धड़ाधड़ कपड़े निकालेंगे, राइट? बट ऐसा अगर मैं एक दर्जी हुए दूसरे को बोलूँ तो वैसा तो नहीं होगा ना. तो कैपिटलिस्ट सिस्टम क्या है, दुनिया को जल्दी चीज़ें प्रोवाइड हुई, ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड हुई, चीप रेट में मिली, वरना एक पिन जो बंदा बनाता है वो कितना महंगा देता था, राइट? आप एक एग्जांपल ले लें, आज भी लोहार्स वगैरह की दुकान होती हैं, अगर कोई ऐसी कोई एग्जांपल ले लें जो सारा कुछ मटेरियल खुद इकट्ठा करता है, तो आप सोच लें कि वो कितना महंगा बेचता होगा, ठीक है? लेकिन उसी के कंपैरिजन में एक जो चीज़ मशीन से निकली हुई है तो वो कितनी सस्ती, कितनी चीप होती है कि हम बस ऑर्डर करते हैं, थोड़ा बहुत अमाउंट लगता है और वो आ जाता है. क्यों? क्योंकि मशीन में जो है इतने मैन नहीं लगे हैं, इतना उस जो आदमियों का काम है वो सारा का सारा मशीन करती जा रही है, राइट? तो इसीलिए जो है लोगों ने सपोर्ट उस समय सपोर्ट में भी थे कि कैपिटलिज्म ठीक है, दुनिया के अंदर चीज़ों की अवेलेबिलिटी बढ़ी है और चीज़ें सस्ती हुई हैं, अफोर्डेबल हुई है, हर एक इंसान इसको ख़रीद सकता है, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस वर्सेस डिसएडवांटेजेस ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम, और आप उसके बाद अपना खुद कंक्लूजन ड्रा करना कि आप कैपिटलिज्म के बारे में क्या सोचते हैं, राइट? एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस क्या हैं? चीप मटेरियल,
लार्ज अमाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी, ओके, चीज़ें ज़्यादा अमाउंट में मिलने लग गई, फास्ट डिलीवरी होने लग गई, ठीक है। उसके बाद या चीप मटेरियल, लार्ज अमाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी, डिलीवरी फास्ट होने लग गई। और डिसएडवांटेजेस की जहाँ तक बात करें तो डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी, जिस तरह से जीबी शाह ने भी कहा है कि सबसे पहली बात तो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है रिड्यूस हो चुका है। अब ह्यूमन इंटेलिजेंस कैसे रिड्यूस हुआ है, मैंने आपको पहले बताया कि एक आदमी बहुत सारे काम करता था लेकिन अब उसको एक ही काम पता है, ठीक है, क्योंकि मशीन आ गई है, बाकी के काम ज़्यादातर काम वही करती जा रही है, तो आपको थोड़ा थोड़ा अलग अलग काम मिल रहा है, ह्यूमन इंटेलिजेंस रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद उनका मानना था कि कैपिटलिज्म जो है एक्सप्लॉइट करता है पब्लिक को। अब कैसे एक्सप्लॉइट करता है, उनका मानना था कि जिस तरह से एक वर्कर है, वर्कर दिन में कितने पिन बनाएगा या कितनी चीज़ें बनाएगा, लेकिन वर्कर को उस पिन का नहीं दिया जाए, उसको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए कि मंथली तुझे 8,000 देंगे, 10,000 दे देंगे, ठीक है। तो 10,000 देकर तो उससे जो है वो लाखों का काम करवा देते हैं, मतलब वो लाखों का प्रोडक्शन करेगा लेकिन तनख्वाह पर उसको रखेगा। तो लेकिन उनका ये मानना था कि सिस्टम कैसा होना चाहिए कि जितना उस बंदे ने वर्क प्रोड्यूस किया है, ठीक है, जितना उसने मटेरियल प्रोड्यूस किया है उसमें से जो प्रॉफिट होगा उसका कुछ परसेंट, अच्छा खासा परसेंट उसको जाना चाहिए, ना कि एक तनख्वाह बेसिस पर आपने उसको लगा दिया, राइट। तो ये राइटर इस चीज़ को हेट करते थे कि इस कैपिटलिस्ट सिस्टम की वजह से एक्सप्लॉइटेशन फैलती है, जो वर्किंग क्लास है जो वो एक्सप्लॉइट होती है, राइट। तो इसी तरह की कुछ मिलती जुलती चीज़ें आपको मार्क्सिज्म में भी पढ़ने को मिलेंगी, वो भी इसी तरह से बात करते हैं प्रोलेटेरिएट और बर्जियाजी क्लास की, राइट। सो ये बातें हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस किसकी, कैपिटलिज्म सिस्टम की, राइट। सो ये बातें थी कैपिटलिस्ट सिस्टम के। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? आई होप कि आपको पूरी तरह से ये ऐसे जो है इसके अंदर जो कंटेंट है, किन किन बातों पर राइटर जो है बात कर रहे हो, कैसे अपना पॉइंट पिन मेकिंग से, वूलन क्लॉथ से समझाने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे बता रहे हैं कि ये एक्सप्लॉइट करती है वर्कर की वर्किंग क्लास को, ह्यूमन इंटेलिजेंस से रिड्यूस होता है। बट उसके साथ साथ हमने देखा है कि इसके एडवांटेजेस भी हैं, राइट। अब एडवांटेजेस हमने यहाँ पढ़ लिए हैं, बहुत एडवांटेजेस भी हमने पढ़ लिए हैं और डिसएडवांटेजेस भी हमने पढ़ लिए हैं। अब आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कैपिटलिज्म के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या आप कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन के साथ इसको सपोर्ट करते हैं, या जो भी आप अपनी राय रखते हैं कैपिटलिज्म के बारे में, आप अपनी कीमती राय जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, फीडबैक भी दें, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या आपको कुछ और कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, सो यू कैन जस्ट contact by means of comment section. So thank you very much. Until the next lecture.